آج ویو 360 میں اربن فلڈنگ کا پیشگی الرٹ جاری ہونے کے باوجود کراچی پانی میں ڈوب گیا۔ بلیک لائیو میٹرز کی تحریک کے بعد امریکی انتخابات میں افریقن امریکن امیدواروں کی ریکارڈ تعداد میں شرکت۔ اور آپ کو دکھائیں گے اپر ہنزا سے گلزرین کی کہانی جو کورونا کے باعث کلاسز آن لائن ہونے پر مشکلات کا شکار ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کراچی میں پیر کو مسلسل دوسرے روز بارش کے بعد شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ شہر کی کئی سڑکوں اور رہائشی علاقوں میں پانی جمع ہے۔ نالوں سے ابلنے والا پانی لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں داخل ہو رہا ہے۔ ماہرین کی طرف سے کراچی میں مانسون کا یہ تیسرا سپیل بتایا جا رہا ہے، جس میں شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ گزشتہ 2 روز کے دوران کراچی میں ہونے والی بارش کے بعد وہی مناظر دیکھنے کو ملے جو ہر مرتبہ بارش کے بعد دکھائی دیتے ہیں۔ شہر کی مرکزی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں اور شہر کے کئی علاقے برساتی پانی میں ڈوب گئے۔ کراچی کے بعض نشیبی علاقوں میں اب بھی پانی جمع ہے، جبکہ پیر کو ہونے والی بارش کے بعد صورتحال مزید ابتر ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے رواں برس مانسون کے دوران کراچی میں 20% بارش زیادہ ہونے کی پیشگوئی کرنے کے ساتھ شہر میں سیلاب کا الرٹ بھی جاری کیا تھا۔ کراچی کی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار سے۔ سدرا، کیسے ڈیل کر رہے ہیں کراچی کے شہری اس بار بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو؟ کراچی میں جب سے مونسون کی بارشیں شروع ہوئی ہیں اور جیسے پچھلے سال ہوئی اور اس برس بھی ہوئی، اس سے عوام مسائل سے نمٹ تو رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت عوام کو وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بارش سے نپٹیں، ٹریفک جیم، اوپر سے جو نکاسی آب کا جو ایک پرابلم ہے وہ تو ہے، لیکن اس برس جو ہم نے سب سے اہم چیز دیکھی وہ یہ کہ گزشتہ 2 دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو صوبائی وزراء ہیں انہوں نے اپنی تصویریں سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی کہ وہ مختلف شاہراہوں سے گزرے ہیں اور وہ پانی سے خالی ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک جنگ کا آغاز ہو گیا کیونکہ عوام جو ہے وہ بہت ایگزاسٹ ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس کے نیچے تصویریں پوسٹ کرنی شروع کی اپنے ان علاقوں کی جو زیر آب ہے، جو ٹریفک جیم کے مناظر ہیں، جو مختلف طرح کی چیزیں وہ مسائل جھیل رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ عوام ایک طرف تو بارش اور اس کی وجہ سے ہونے والی جو تباہ کاریاں ہیں ان سے تو نبردآزما ہے ہی، لیکن ان کی جو دوسری جنگ شروع ہو گئی ہے وہ مس انفارمیشن سے شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جو حکومتی نمائندے ہیں، جو صوبائی حکومت ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو تصاویر پوسٹ کی جا رہی ہیں وہ گزشتہ برس کی ہیں، تو عوام جو ہے وہ اس پر خاصے غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ سدرا، پچھلے سال بھی صورتحال مورلس یہی تھی، 1 سال میں اب بھی اگر ہم دیکھیں تو سچویشن ویسی کی ویسی ہے، کچھ بدلا ہے اس پورے 1 سال میں؟ کراچی میں جو سب سے زیادہ خرچہ ہوا تھا نالوں کی صفائی کا وہ 2 سال پہلے ہوا تھا۔ اس برس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شہر کے 500 سے زائد برساتی نالے ہیں وہ ڈی ایم سی کے انڈر ہیں، 30 سے زیادہ جو بڑے برساتی نالے ہیں وہ کے ایم سی کے انڈر ہیں، لیکن ایک تو اختیارات اور فنڈز کے حوالے سے جو جنگ دونوں کے بیچ میں چل رہی ہے اور جو عدم اعتماد ہے، وہ جو 30-38 نالے ہیں وہ بھی اس وقت صوبائی حکومت کے پاس ہیں، جس کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی عالمی بینک کے جو تعاون ہے اس کی وجہ سے جو ملنے والا فنڈ ہے جو کہ تقریباً 1 ارب 15 کروڑ ہے وہ دیے گئے ہیں کہ اس سے صاف کر لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے برساتی نالے ہیں، اربن فلڈ وارننگ جاری ہو چکی تھی لیکن بہت پہلے اس پہ کام ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ ان نالوں کی صفائی سال میں 2 سے 3 دفعہ ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہو سکی۔ اب 2 روز پہلے اگر آپ مشینری اتارتے اور نالوں کی صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے صاف نہیں ہو سکتے۔ تو اختیارات کے جو جنگ ہے وہ بھی ہمیں نظر آئی، اور جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جو فنڈز کا مسئلہ ہے اور جو شہر میں نکاسی آب کا جو ایشو تھا وہ بھی اپنی جگہ بتدریج موجود رہا۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پورے شہر جو کہ میٹروپولیٹن شہر ہے جہاں کروڑوں کی آبادی ہے، وہاں پر برساتی بڑے نالوں کو صاف کرنے کے لیے 1 ارب اور 15 کروڑ کا جو فنڈ مختص ہوا وہ بھی عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے، وہ میرے حساب سے یا میں اگر یہ بات کہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ناکافی ہے۔ تو یہ جو سہولتیں ہیں یہ عوام کو بر وقت نہیں مل سکیں، اور انہی کی وجوہات کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اربن فلڈ وارننگ کی جو وارننگ جاری ہوئی تھی وہ شہر میں اس وقت یہ مناظر پیش کر رہی ہے کہ رہائشی علاقوں میں پانی بھی داخل ہو چکا ہے، سڑکیں زیر آب آ چکی ہیں، ٹریفک جیم ہے، کاروبار متاثر ہو رہا ہے اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اس وقت خاصی مشکل کا شکار ہے۔
بہت شکریہ سدرا ڈار آپ کا. سدرا ہمیں بتا رہی تھیں کراچی میں جو صورتحال ہے بارشوں کے بعد. سندھ کے وزیر اطلاعات اور وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ناصر حسین شاہ کا کراچی کی بارشوں پر حکومت کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہنا ہے. وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے ان کی بات ہوئی, آئیے سنتے ہیں. لیکن ہم نے کام کیا ہے کافی حد تک. آپ نے دیکھا کہ ان شدید بارشوں میں بھی کافی جو بڑی شاہراہیں تھیں وہ موٹریبل رہیں, اور اگر 2-3 گھنٹے وہاں پہ رکا بھی پانی رہا بھی تو اس کے بعد وہ اتر گیا. یہ جو کام ہوئے اس وجہ سے ہی ہوا تھا, لیکن پھر بھی کچھ جگہوں پہ بہت ساری ایشوز آئے ہیں جن کو بہتر کیا جا رہا ہے. نالوں کی صفائی بھی کی جا رہی ہے اور اس کا بھی پورا جو کام ہے کافی حد تک ہوا ہے. تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا, اس لیے 30-40% کام ہوا ہے وہاں پہ. بڑا حصہ جو ہے شہر کا وہ بہتر صورتحال رہتی ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ ضرور پرابلم ہے جس کو بہتر کیا جا رہا ہے. اور ہم نے یہ جو ابھی صفائی کا کام شروع کیا ہے, کیونکہ ویسے تو نالے کچھ KMT کے ہیں, کچھ DMC کے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے, لیکن ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ ہمیشہ انہیں سپورٹ کرتی ہے. اور پہلے بھی کافی پیسے فنڈز دیے گئے, لیکن اس دفعہ ہم نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نیسپاک, KMC اور سویپ کے ادارے کو اس میں انوالو کیا. لیکن وہ کووڈ کی وجہ سے ورلڈ بینک نے کچھ لیٹ ضرور کر دیا, لیکن اب CM صاحب نے خود خصوصی فنڈ دیے ہیں تو کام ہوا. اس کی وجہ سے چاکنگ پوائنٹ جو بھی تھے, کوئی 52 کے قریب چاکنگ پوائنٹ تھے جن کو بہتر کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جتنی بڑی شاہراہیں ہیں, اگر پانی وہاں پہ رکا بھی تو 2-2.5 گھنٹے میں سارا نکل گیا نالوں کے ذریعے. ایریا میں ایشو ہے اور یہ اگست کے اینڈ تک تمام نالوں کی پراپر صفائی ہو جائے گی, اور اس کو بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا گیا ہے کہ جو بھی سلج نکلے گا اس کو لینڈ فل سائٹ پر جب پہنچایا جائے گا اس کا ویٹ ہوگا اور اس کو مانیٹر اور ایویلیٹ کریں گے نیس پاک والے, پھر ان کو پیمنٹ دی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ماضی کی طرح کوئی ٹینڈر کر دیا گیا اور پھر جتنا بھی نالا صاف ہوا اس کو ادائیگی کر دی گئی. دیکھیں یہ پہلے کی یہ ساری irregularities ہیں, پہلے منصوبہ بندی کے بغیر بہت سارے کام کیے گئے. اب ہر کام جو ہے پراپر ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ بہت سارے پروجیکٹ ہمارے جو رواں سال جو ہے اس میں کمپلیٹ ہوئے, اور مزید جو ہے آئندہ سال جو آ رہا ہے وہاں یہاں پہ کمپلیٹ ہوں گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ بہت کم عرصے میں انڈر پاسز بنے, اوور ہیڈ برج بنے, دیگر انفراسٹرکچر بنے. اس دفعہ جو روڈ بنائے گئے ان میں یہ خیال رکھا گیا کہ ڈرینیج اور سیوریج کا کمپوننٹ بالکل ہو, اور تاکہ یہ ایشو نہ ہو کہ دوبارہ وہاں پہ مسائل ہوں. اور اب چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں. پاکستان میں 50,000 سے زائد سکھ برادری کے افراد مقیم ہیں. ان میں سے 35,000 صوبہ خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر ہیں. آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے صوبے کے دیگر حصوں میں شمشان گھاٹ کی سہولت موجود ہے, لیکن مرکزی شہر پشاور میں اس کا انتظام نہیں ہے, جس کے باعث سکھ کمیونٹی کو دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے. صوبائی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ مذہبی تفریق نہیں بلکہ مالی رکاوٹیں ہیں. تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام کی رپورٹ میں. پشاور کے محلہ جوگن شاہ کو منی امرتسر بھی کہا جاتا ہے. یہاں سکھ نسل در نسل رہتے آ رہے ہیں. زندگی کی ہر ضرورت انہیں یہاں مل جاتی ہے, لیکن جب گرمیت سنگھ کے لیے اپنے والدین کی آخری رسومات ادا کرنے کا وقت آیا تو انہیں اپنے آبائی شہر پشاور سے اٹک جانا پڑا, کیونکہ اس پورے شہر میں کوئی شمشان گھاٹ نہیں. گرمیت سنگھ کے والدین سمیت کئی قریبی رشتہ دار جولائی کے آغاز میں شیخو پورہ کے قریب پیش آنے والے ٹرین حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے. شمشان گھاٹ کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے. اسی دن جہاں ہمارا یہ واقعہ ہوا تھا تقریباً ہمارے پاس کوئی 20 تک ایمبولینس تھے, اس کے علاوہ 200-250 تک ہمارے پاس گاڑیاں تھیں. خدا نہ کرے کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ اس میں سامنے آ سکتا تھا. شمشان گھاٹ کا ہمارا یہاں پہ پشاور میں بہت لازمی ہے اور بہت ہماری ضرورت ہے. پاکستان میں سکھوں کی کل تعداد تقریباً 55,000 ہے. ان میں 35,000 صوبہ خیبر پختونخوا میں آباد ہیں. صوبے کے دیگر حصوں میں شمشان گھاٹ کی سہولت موجود ہے, لیکن سکھ کمیونٹی کی دیرینہ خواہش کے باوجود پشاور میں اس کا انتظام اب تک نہیں ہو سکا. صوبائی حکومت کے مطابق اس کی وجہ مذہبی تفریق نہیں ہے. لوگوں میں اور کمیونٹی میں کوئی تضاد نہیں ہے.
अब बात आती है ज़मीन परचेस का, जैसे मैंने पहले बता दिया, यहाँ पर रेट का इशू आता है। अब मार्केट रेट में आपकी ज़मीन अगर 1 करोड़ है तो सरकार की रेट जो 50 लाख होती है, तो आप रिलेक्टेंट इसलिए होते हैं कि आप मुझे 1 करोड़ दे दें, मेरे मार्केट रेट ये है। तो यहाँ पर रेट का इशू है, अदरवाइज़ कोई जो कम्युनल इशू की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। सिख बरादरी कहती है कि हुकूमत उनके साथ 70 सालों से आंख मचोली खेल रही है और अगर उन्हें सरकारी ज़मीन अलॉट कर दी जाए तो इससे दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों का भी भला हो जाए। ये हमारा देरीना मुतालबा है शमशान घाट का। हमारी बहुत ज़्यादा कम्यूनिटी आबाद है और ये ना सिर्फ सिख कम्यूनिटी के लिए है बल्कि हिंदू कम्यूनिटी को भी ज़रूरत है और क्रिश्चियन कम्यूनिटी की भी कई शमशान घाट्स नाकाफ़ी हो चुके हैं। और ये मसला जो है स्वात में, मर्दान में, नौशेरा में, कोहाट में, अंगू में और पेशावर में। मिनी अमृतसर के रिहायशियों का कहना है कि हुकूमत का भारत के सिख यात्रियों के लिए करतारपुर दारी खोलना एक खुशाइन अमल है, लेकिन इसके साथ साथ इसे अपने सिख शहरियों की एक बुनियादी ज़रूरत पर भी तवज्जो देनी चाहिए। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। दूसरी तरफ कोयटा में 73 साल बाद श्री गुरु सिंह गुरुद्वारा सिख बरादरी के हवाले कर दिया गया। ये गुरुद्वारा बलोचिस्तान में कोयटा शहर के वस्त में मस्जिद रोड पर कायम है, जिसे 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद स्कूल की इमारत में तब्दील कर दिया गया था। सिख कम्युनिटी के मुताबिक इस गुरुद्वारे की तारीख कमोबेश 200 साल पुरानी है। गुरुद्वारे को सिख बरादरी के हवाले किए जाने से मुतालिक हुक्म बलोचिस्तान की अदालत आलिया ने जारी किया था कि हमें पाकिस्तान के बाद इसे स्कूल में तब्दील किए जाने के बाद दोबारा असल शक्ल में बहाल नहीं किया गया था, जिस पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। बलोचिस्तान में लगभग 2000 सिख आबाद हैं और कम्युनिटी ने गुरुद्वारे के इंतजामात संभालने के बाद इसकी मुरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया है। मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी इबादत की गर्ज से इस गुरुद्वारे का रुख कर रही हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि गुरुद्वारे की तज़ीन व आराइश और वहाँ ज़रूरी सहूलतें फ़राहम करने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। तकरीबन काफ़ी अरसे इसका केस चला कोर्ट में, हमारा कोर्ट ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया इसे हमें। कोर्ट के बाद उन्होंने फिर हमें हैंड ओवर किया है, फिर उसके बाद यहाँ हमारी इबादत शुरू हो गई। दुनिया भर की अहम मालूमात, खबरों और तज्जियों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। कोरोना वायरस की आलमी वबा के बायस जहां दीगर मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, वहीं तालीम और तदरीस का सिलसिला भी काफ़ी हद तक मुअत्तल हो गया है। कई मुल्कों में ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए तदरीसी अमल जारी है, लेकिन ये सहूलत तरक्की पजीर मुल्कों के तलबा और असातिज़ा के लिए बहुत हद तक जहमत बनी हुई है। ऑनलाइन क्लासेस से तलबा और असातिज़ा को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका की इस खुसूसी सीरीज़ में आज हम आपको दिखाते हैं अपर हुंजा से गुलशन ज़रीन की कहानी, जो ऑनलाइन तालीम के निज़ाम की वजह से अपनी क्लासेस जारी रखने के लिए बहुत हद तक तगदो कर रही हैं। हमारे गांव से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर सोस्त गांव में इंटरनेट प्रोवाइडर है। हमारे गांव में सही से सिग्नल्स नहीं आते और सिग्नल्स बार बार ड्रॉप हो जाते हैं। इर्द गिर्द पहाड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं और क्लासेस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे घर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर पैदल दुश्वार गुजार और पथरीले रास्तों से होते हुए एक ऐसी दास में पहुंचना होता है जहां ना पानी है, ना छाँव और ना ही सही से बैठने की जगह। मेरा नाम गुलशन ज़रीन है। मेरा ताल्लुक़ अपर हुंजा से है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हूँ। मुझे अपने क्लासेस लेने के लिए घर से 1 घंटा पहले निकलना होता है। ख़तरनाक और पथरीले रास्तों से होते हुए मैं एक ऐसे पुल पे पहुंचती हूँ जिसको हमारे आबाओ अजदाद ने तकरीबन 45 साल पहले अपनी मदद आपके तहत बनाया था और अभी उसकी हालत बहुत खस्ता हाल है। बड़ी मुश्किल से उस पुल को क्रॉस करने के बाद एक और कठिन रास्ता, एक पहाड़ जिसको काट कर मुश्किल से पैदल चलने का रास्ता बनाया गया है, जिसके नीचे दरियाए खुंजरा बह रही होती है। मेरी एक नज़र दरिया पे होती है तो एक नज़र रास्ते पे। बड़ी मुश्किलों से इस रास्ते को क्रॉस करने के बाद मैं उस दास में पहुंचती हूँ जहाँ अगर मुझे इंटरनेट के सिग्नल्स मिले तो मैं अपने क्लासेस अटेंड कर सकूँ। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान अक्सर सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेक्चर्स और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें निकल जाती हैं। मुसलसल 2 दिन बारिश होने की वजह से
मैं उस दास तक नहीं जा सकी, तो बाबा मुझे 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव लेके गए जहां पे सिग्नल सही से आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मुझे वहां पे भी सिग्नल्स ना मिले। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई, बहुत ज़्यादा रोई। मेरी हालत देख के बाबा मुझे गिलगित सिटी लेके गए। गिलगित सिटी में 22 दिन रही और अपने फाइनल्स के एग्ज़ाम दिए। मेरी तकरीबन 1500 की आबादी है, जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की है और मेरी तरह सारे स्टूडेंट्स इसी मसाइल से दो चार हैं। अमेरिका में नस्ली तासुब के खात्मे के लिए एहतजाज शुरू हुए 2 महीने होने वाले हैं। बाज़ शहरों में मुजाहिरीन को रोकने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया ने वफाकी इदारों के सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया है, जिस पर इन शहरों के मेयर्स सख्त तनकीद भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुजाहिरीन की जानिब वफाकी सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात मज़ीद तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। इससे पहले एहतजाज में शरीक कुछ अफराद ने मरकज़ी अदालत की इमारत पर आतशी मवाद फेंका। रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टन में ब्लैक लाइव मैटर्स के हक़ में एक मुजाहरे के दौरान हफ्ते के रोज़ फायरिंग के वाक़े में एक शख्स हलाक हो गया। रियासत वाशिंगटन के शहर सिएटल में भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस इस्तेमाल की। ऐसे में जब समाजी इंसाफ के लिए तहरीक जारी है, अमेरिका में नवंबर में होने वाले इंतखाबात के लिए स्याफाम ख़वातीन उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा देखा गया है। सन 2012 में कांग्रेस की नशिस्तों के लिए स्याफाम या कसीर नस्ली पसमंज़र रखने वाली 48 ख़वातीन ने हिस्सा लिया था। इस साल सेंटर फॉर अमेरिकन वुमेन एंड पॉलिटिक्स के मुताबिक 122 इस वक्त भी इनमें से 60 ख़वातीन कैंपेन कर रही हैं। इनमें से ज़्यादातर उम्मीदवार उन इलाकों में से इंतखाबात लड़ रही हैं जहां सफ़ेद फार्म आबादी अक्सरियत में है या मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं और जहां माजी में रिपब्लिकन पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं। अमेरिका में नवंबर के महीने में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें सदर ट्रंप और साबिक नायब सदर जो बाइडन सदारती उम्मीदवारों के तौर पर आमने सामने हैं। अब तक किए जाने वाले तमाम अवामी जायज़ों में फ़िलहाल डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन को रिपब्लिकन उम्मीदवार यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ बरतरी हासिल है, लेकिन क्या पाकिस्तानी अमरीकी नौजवान वोट देते हुए उम्मीदवारों को जहन में रखते हैं या महज पार्टी के बारे में सोचते हैं? ये जानने की कोशिश की हमारी साथी सादिया ज़ेब रांझा ने अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी तारकीन वतन अमेरिका में जनूबी एशियाई बाशिंदों का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। इनकी तादाद का अंदाज़ा 5 लाख से ज़्यादा लगाया जाता है। पाकिस्तान में अपनी जड़ें रखने वाले पाकिस्तानी नौजवान अमरीकी सियासत में किस कदर दिलचस्पी लेते हैं और इनके लिए क्या इश्यूज़ अहम हैं, ये सवाल जब मैंने IT के शोबे से वाबस्ता सहर जमाल के आगे रखा तो उनका कहना था कि ज़ाती तौर पर उनके लिए पार्टी की वाबस्तगी अहम नहीं। जब मैं वोट देने जाती हूँ मैं पार्टीज़ को नहीं देखती, मैं कैंडिडेट्स और उनकी पॉलिसीज़ को देखती हूँ क्योंकि मेरे लिए पॉलिसीज़ ज़्यादा मायने रखती हैं। फतेह तारड़ कानून के तालिब इल्म है और उनका ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है जो न सिर्फ अमरीका बल्कि पाकिस्तान में भी सियासी तौर पर सरगर्म है, लेकिन इसके बावजूद फतेह वोट डालते हुए अपने ज़ाती मसाइल को जहन में रखते हैं। मेरे जहन में वो मसाइल होते हैं जो मेरे लिए अहम है, मसलन तालीम, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत का निज़ाम। ये वो मसाइल हैं जो बराह रास्त आप पर असरअंदाज होते हैं। अगरचे डिनर टेबल पर वालिद साहब से सियासी वाबस्तगी से मुतालिक बहस होती है, लेकिन बहुत मुस्बत अंदाज में। सदीका तारड़ कहती हैं कि हमारे घर में मुख्तलिफ सियासी वाबस्तगी रखने वाले लोग रहते हैं जिनका अपना अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन सभी अपनी राय में आज़ाद हैं और अपनी सोच के मुताबिक वोट देने जाते हैं। Education and economic growth. तालीम और इक़्तिसादी तरक्की मेरे लिए अहम है। मैं कभी पार्टी की बुनियाद पर वोट डालने नहीं जाती। मैं ऐसे उम्मीदवारों को चुनती हूँ जो तालीम की अहमियत को समझता हो और ऐसा उम्मीदवार जो सभी के लिए बराबरी के मौक़ों पर यकीन रखता हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। फतेह और सदीका के वालिद साजिद तारड़ एक सरगर्म सियासी शख्सियत हैं। वो कहते हैं कि कतई नज़र पार्टी के बच्चों की सियासत में शमूलियत होनी ज़रूरी है। ज़ाती तौर पर कई दफ़ा कोशिश की है, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव हूँ खुद। मैंने कई दफ़ा ये चूरन बेचने की कोशिश की है घर में, लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि लिबरल स्कूलों में जाते हैं, फिर टीवी का इन्फ्लुएंस है, पीयर प्रेशर है, दे आर बोथ ऑलवेज आर्ग्यू मेरे साथ करते हैं। और खासकर मेरा बच्चा लॉ स्टूडेंट है, और मैंने एक दिन उससे पिछले दिनों पूछा था कि इफ यू हैव टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस व्हिच पार्टी यू चूज, तो उसने मुझे ओपनली कहा था कि आई विल रन एज अ डेमोक्रेट। साजिद तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान में अब भी बरादरी की बुनियाद पर और वादों पर वोट डाले जाते हैं। यहाँ के नौजवान मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हैं। इनकी अपनी सोच है जिससे उनके वालिदैन तक की सोच का एक होना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, मेरा ख्याल है कि दोनों को ये ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स की पॉलिसीज़ होती है ना, वो अपने पार्टीज़ के बेसिस पे होती है। पार्टी तो होती है, बट
उसको रिप्रेजेंट कैंडिडेट कर रहा होता है। वैसे तो मैं दोनों देखता हूँ, पर मैं कैंडिडेट में देखता हूँ कि वो अच्छा पब्लिक स्पीकर है। मैं पार्टीज़ को भी देखती हूँ, सबको देखती हूँ, कौन सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करेगा, हमारे स्कूल्स के लिए और हमारे मॉस्क्स के लिए। यहाँ अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी नौजवानों का कहना है कि वो अपनी राय की अहमियत से आगाह हैं, इसलिए वो ज़रूर वोट डालने जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके आने वाले 4 सालों का इन्हिसार इसी पर होगा। वो उम्मीदवार नहीं बल्कि अपना मुस्तकबिल चुनने जाते हैं। सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फॉल्स चर्च, वर्जीनिया। इस साल ईद उल अजहा की रौनकें भी कोविड-19 की वजह से कुछ मांद पड़ती दिखाई देती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मामला कुर्बानी के जानवर की खरीदारी का है। जानवरों की ऑनलाइन खरीदारी पाकिस्तान में कितनी मकबूल है, खुली मवेशी मंडियों से कौन खरीदारी कर रहा है और उलमा ऑनलाइन कुर्बानी के इस तरीके को कैसे देख रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश की गेतियारा अनीस ने अपनी इस रिपोर्ट में। बकरा ईद सर पर है और यासिर के वेब पोर्टल पर कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त अरूज पर है। बकरा ऑनलाइन नामी ये वेब पोर्टल यूँ तो पिछले कई साल से खरीदार और जानवर फरोख्त करने वालों के दरमियान राब्ता कायम कर रही है, लेकिन इस साल कोविड-19 के बायस इस वेबसाइट के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा हुआ है। स्पेशली हमने देखा है कि इन कोविड-19 के दिनों में जो विजिटर्स हैं वो पिछले साल की निस्बत 3 गुना बढ़ गए हैं। लोग डिफरेंट आते हैं, अपनी प्राइसेस डालते हैं, उनके नंबर्स वगैरह ठीक है, जो बाहर से हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे डेफिनेटली नेगोशिएट करते हैं ताकि वो इन दिनों बगैर बाहर निकले अपने घर के अंदर इजीली जानवर को परचेज कर सकें। लेकिन इंटरनेट के जरिए कुर्बानी का जानवर खरीदना बहुत से लोगों की पसंद नहीं। आलमी वबा और हुकूमत के कवायद ज़वाबित के बावजूद अब्दुल अहद अपने चचा और कजन्स के साथ इस्लामाबाद की एक मवेशी मंडी में मनपसंद जानवर ढूंढ रहे हैं। नहीं, ऑनलाइन वो चीज़ नहीं रहती ना। ऑनलाइन अभी लाइव है, जो हमने इसको देखा है वो और चीज़ है, ऑनलाइन देखें वो और हिसाब है। ऊपर से ऑनलाइन जो है वो कई जगह पे फ्रॉड भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं, उससे भी तो बचना है। यहाँ पर लाइव जो तरीक़ाकार है वो ठीक है, बेहतर है। इंटरनेट के जरिए कुर्बानी करने के बारे में कई सवालात भी गर्दिश कर रहे हैं। खुसूसन फलाही इदारों को कुर्बानी के लिए रकम देने पर एतराज़ किया जा रहा है। उलमा कहते हैं कि ऑनलाइन जानवर खरीदने में कोई मज़ाइका नहीं, मगर वो कुर्बानी के अमल में ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत यकीनी बनाने पर जोर देते हैं। इदारा है या अफराद हैं, उन्होंने ऑनलाइन कुर्बानी का इंतज़ाम कर रखा है। जानवर ऑनलाइन दिखाते हैं, ख़रीदार उसको देखकर मुतमईन हो जाता है और फिर वो शरीयत के मुताबिक कुर्बानी भी करते हैं, कुर्बानी के अमल को दिखाते भी हैं और ऑनलाइन कीमत वसूल करते हैं, तो ये दुरुस्त है। पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2019 में ईद उल अज़हा के मौके पर 200 अरब से ज़ायद रकम के जानवरों की खरीदो फरोख्त हुई थी। वबा के बायस इंटरनेट के जरिए खरीदो फरोख्त हजूम से बचने के लिए तो मददगार है, मगर जानवरों के व्यापारियों की अक्सरियत कारोबार के लिए इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करती। कोविड-19 की वजह से जहां इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में रवायती रश नहीं, वहीं ऑनलाइन कुर्बानी का जानवर खरीदने का रुझान जरूर बढ़ा है। अलबत्ता उलमा समझते हैं कि ऑनलाइन कुर्बानी करने वाले इदारे अगर उलमा को बतौर अवामी वकील शामिल करते हैं तो इस अमल से अवाम में ऑनलाइन कुर्बानी पर एतमाद बढ़ेगा। गेतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।